Let's begin our today's topic with Kingdom Protista, and all the single cell eukaryotes are kept under the Kingdom Protista. And there is no clear cut demarcation between the plant or animal, because इसमें जितने भी organisms हैं उनमें से कुछ organisms ऐसे भी हैं which may be photosynthesize, or sometimes they can take their food फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म. तो एक बायोलॉजिस्ट के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि बिकॉज फॉर वन बायोलॉजिस्ट इट इज़ अ photosynthetic organism or photosynthetic protestin, whereas another biologist claim that this is a plant. So there is no clear cut demarcation, and in this book we are going to study about chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans, which we kept into this kingdom Protista. So basically member of Protista are primarily aquatic. They all are aquatic, and this kingdom is a kind of link, connecting link between all these things like plants, animals and fungi, etc. So as we all know that eukaryotic cells have well defined nucleus and membrane bound organelles. So same is true for this kingdom Protista also. And some protistans have flagella, or some have the cilia. Protista may reproduce sexually as well as asexually by the process of cell fusion or zygote formation. So these are the some properties of the kingdom Protista. So now one by one we are going to discuss. First we are going to discuss about the chrysophytes. Chrysophytes. So these chrysophytes includes diatoms and golden algae that are commonly called as desmids. So golden algae and diatoms are two organisms which are present in the chrysophytes, and they are found in the fresh water as well as the marine water. They are very small microscopic organism. ये पानी की करंट में पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, लाइक जस्ट प्लैंकटॉन्स जैसे तैरते हैं पानी में उसी तरीके से. एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. एंड डायटम्स की स्पेशल चीज़ है कि हियर यू कैन सी इन दिस के डायग्राम, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ डायटम. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनकी सेल वॉल्स है, इट इज़ जस्ट लाइक अ ओवरलैपिंग थिंग, लाइक सोप केस. सपोज एक सेल वॉल यूँ हो गई और एक सेल वॉल इसके ऊपर से ऐसे आ गई, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ soap case. If you have seen that these cell walls are thin overlapping shell like structure which fit together like a box. जैसे आप बॉक्स प्लास्टिक का होता है, सोप बॉक्स कह लो या लंच बॉक्स कह लो, तो वैसे ये फिट हो जाते हैं. एंड बहुत पतले से थिन से ये सेल वॉल्स होते हैं. एंड दीज सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका. इसमें बहुत सारा सिलिका, ये सब सिलिका से भरे हुए सेल वॉल्स होते हैं. तो वेन एवर एंड ऑब्वियसली जब ये सिलिका से फिल्ड होते हैं, तो दैट मीन्स दे आर indestructible for that means these walls are impermeable for water, you can say in easy words. So the wall are embedded with the silica, and that's why they are impermeable. And these diatoms whenever they die they left behind large amount of cell wall, क्योंकि जब ये इनकी डेथ हो जाएगी तो ये जो बने हुए आपके सेल वॉल्स हैं सिलिकॉन फिल्ड, तो ये पीछे छूट जाएंगे. तो अब काफ़ी टाइम तक ये जब पड़े रहते हैं अर्थ पे तो डिकम्पोज होंगे, तो अर्थ पे कौन सी सॉइल आ जाएगी, सिलिका रिच सॉइल जो है वहाँ पर आ जाएगी ना. तो the atoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulates over billions of years and it forms the diatomaceous earth. This is the important thing कि how diatomaceous earths are formed. Diatomaceous earths are formed by the death of these diatoms whose cell wall is filled with silica. तो वो बाद में diatomaceous earth बनाती है. That means the soil which is rich in silica. And being gritty, these soil क्योंकि वो रफ सी होती है ना surface, तो being gritty this soil is used for पॉलिशिंग. ये पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं सॉइल को, फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं फॉर ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए. एंड डायटम्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होते हैं हैविंग द क्लोरोप्लास्ट, तो ये प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो करते हैं. सो यू कैन सी दैट इन द डायग्राम द डायटमेशियस अर्थ कैसे बनेगी और ये किस तरह से डायटम का बॉडी होती है. तो मैग्नीफाइड व्यू है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ शेल जो आपको बाहर से दिखता है. ये अपर एंड लोअर दोनों शेल्स हैं इसके साथ में. दिस वन इज़ लोअर शेल एंड दिस वन इज़ अपर शेल, and they fit like a soap box.
Then now next come to the dinoflagellates. Another group is dinoflagellates, and these organisms are mostly found in seawater, and they are also photosynthetic. That means they have chlorophyll also. This is the diagram of dinoflagellate. This one, these are the dinoflagellates. So they may be differently colored, like yellow, green, brown, blue, red. It depends upon the kind of pigment present into their cell wall. जैसा पिगमेंट होता है वैसा ये कलर इनका दिखता है. एंड द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस. इनके सेल वॉल के बाहर जो सेलुलोज है उसकी एक स्टिफ सी टफ सी जो सेल वॉल है पाई जाती है. एंड मोस्टली यू हैव सीन दैट देर आर 2 फ्लैजिला एंड दे आर ऑन द ऑपोजिट पोल्स. आप देखो एक फ्लैजिला यहाँ से निकल रहा है और एक फ्लैजिला यहाँ से निकल रहा है. दैट मीन्स वन इज़ लॉन्गिट्यूडनली एंड अनदर इज ट्रांसवर्सली अराइजेस. तो ये दो तरह के से लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सली. एंड ये फरो है, ये बीच में से दरार जैसा स्ट्रक्चर है, फरो स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं. दिस इज़ अ काइंड ऑफ फरो. तो इनके बीच में से आप निकलता हुआ देख रहे हो इन फ्लैजिला को. एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स मीन्स 2 फ्लैजिला हैं, दैट मीन्स डाइनोफ्लैजिलेट्स इनका नाम होता है. एंड ऑब्वियसली दे गो रैपिड मल्टीप्लिकेशन समटाइम्स एंड मेक सी कलर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स. मतलब दैट मीन्स कि सपोज रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है तो दे अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड मेक द सी अपीयर रेड. तो वो सी को बिल्कुल रेड कलर का कन्वर्ट कर देते हैं. रेड टाइड्स भी जिनको हम बोलते हैं. सपोज कोई देयर इज़ अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द रेड टाइड्स. तो रेड टाइड्स का मतलब क्या? दैट दीज डाइनोफ्लैजिलेट्स विच आर रेड इन कलर दे start multiplying very fast and they make the sea appear red. And sometimes they release toxins also. कुछ ऐसे toxins means कुछ poisonous substance भी release करते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे दूसरे एनिमल्स जो सी में रहते हैं वो उनकी डेथ भी हो जाती है. बेसिकली लाइक फिशेस उनकी डेथ भी हो जाती है ड्यू टू द टॉक्सिन सब्सटेंसेज रिलीज्ड बाय दिस डाइनोफ्लैजिलेट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइनोफ्लैजिलेट. एंड now come to the euglenoid. And euglena we all have studied in our lower classes that these animals are found in the fresh water and stagnant water, basically जो पानी रुका हुआ होता है, free flowing water ना हो. and instead of a cell wall इनकी स्पेशल चीज़ क्या होती है कि इनकी बॉडी पे सेल वॉल नहीं होती यहाँ पर. इसकी जहाँ पर एक पतली सी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की बनी हुई, दैट इज़ कॉल्ड पेलिकल. दिस इज समथिंग लाइक सेलोफिन. जैसे पतली सी सेलोफिन होती है उस टाइप से स्ट्रक्चर पतला सा होता है जैसे कॉल्ड पेलिकल विच इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन एंड इट मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं, सेल वॉल इज स्टिफ. लेकिन अब ये पेलिकल है विच इज़ जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि सेलोफिन टाइप. तो इसकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है. इट कैन मूव ईजिली इन एनी डायरेक्शन. एंड इट ऑल्सो हैव 2 फ्लैजिला, अ शॉर्ट वन एंड अ लार्ज वन. तो 2 फ्लैजिला जो हैं वो पाए जाते हैं इनकी बॉडी पर यूजुअली. एंड दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अगर तो सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और जब सनलाइट नहीं होती है देन दे बिहेव एज अ हेट्रोट्रॉफ. दैट मीन्स दे get their food from another smaller animal. That means they predate on themselves. predate means उसको मार के खा जाना दूसरे स्मॉल एनिमल्स को. तो दूसरे स्मॉल एनिमल्स को ये किल करके खा जाते हैं. तो दैट मीन्स प्रिडेशन करते हैं. एंड इनके जो ये यूग्लिना हैं दे हैव दैट क्लोरोफिल इन देम. तो दैट्स वाई देर इज़ अ कन्फ्यूजन कि वेदर दे आर एनिमल्स और दे आर द प्लांट्स. तो यूग्लिनाइड्स आर बेसिकली they are identified themselves as a plants also, higher plants also. But now you know that they are placed into the euglenoids. And then come to the next, that is molds. The molds means something like a fungi kind of thing. तो some are saprophyte protist. तो basically they are saprophytic होते हैं ये वाले protist. That means they get their food from the dead organisms. And they basically present around the decaying ट्विग्स एंड लीव्स. जो सड़ती गलती चीज़ें होती हैं उनके चारों तरफ ये पाया जाता है क्योंकि ये उन्हीं को खाते हैं, उसी मैटर को, सड़ी गली हुई चीज़ों को खाते हैं. और इफ़ देयर इज़ कंडीशन सुटेबल फॉर देम दे फॉर्म एन एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम. अगर इनकी कंडीशन इनको सुटेबल मिल गई तो दे फॉर्म एज एमॉर्फस सब्सटेंस, ऐसे करके बनाते हैं ये. दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम. ये प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये चिपचिपा सा जैसे ग्लू होता है उस टाइप का एक सब्सटेंस होता है, प्लाज्मोडियम बनाते हैं when conditions are favorable.
एंड दे में स्प्रेड लार्ज, यू कैन से स्पेस, दे कवर लार्ज स्पेस। ये इसी तरीके से ग्रो करते चले जाते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम मैंने बनाया, तो ये पता नहीं कितने भी एरिया में ऐसे 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 करके ये पूरा ग्रो करते चले जाएंगे, और ये सारा इस तरह से आपको नजर आएगा। एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडीज। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, दैट आर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, जो कि बाहर इस तरीके से निकलती हैं। और इनके अंदर होते क्या है, बेसिकली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इनको हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। दे बियर स्पोर्स एट इट्स टिप्स। यहाँ पर इस तरीके से ये स्पोर्स इन पे आ जाते हैं। एंड ये जो स्पोर्स होते हैं दे हैव ट्रू वॉल्स एंड दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट फॉर द वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन। दैट मीन्स इन पे किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन का इन स्पोर्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो इन प्लाज्मोडियम्स में जो फ्रूटिंग बॉडीज़, जैसे मैंने आपको बताया, तो इनके अंदर जो निकल आते हैं स्पोर्स, तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड जब भी कंडीशन इनको लगता है आपकी फेवरेबल आ गई, तो ये, क्योंकि ये वाली कंडीशन, ये जो स्पोर्स बने हैं जो बहुत रेजिस्टेंट सेल वॉल हैं, ये क्यों बने हैं, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दैट अनफेवरेबल कंडीशंस। एंड आफ्टर देन व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स, ये क्या करते हैं, डिस्पर्स होते हैं बाय द एयर करंट एंड दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग अगेन। एंड दीज स्पोर्ट्स आर वेरी रेजिस्टेंट, दैट मीन्स दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। ये बहुत साल तक भी स्पोर्ट्स अगर मिट्टी में या वहाँ कहीं भी पड़े रहें, पानी में कहीं भी, तो वो ख़राब नहीं होते, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो पड़े रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन आने पर वो जर्मिनेट करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं सेल वॉल और वो जर्मिनेट कर जाते हैं। नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ प्रोटोजोअन्स। एंड प्रोटोजोअन्स, वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। एंड वन जो वेरी कॉमन, बहुत ही फ्रेंडली सा आपका अमीबा, जो जिसके बारे में आप जानते हो। तो दीज प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड दे ऑल्सो लिव्स एज अ पैरासाइट्स और predators also. The protozoans are very primitive. It is believed that they are very primitive, और ये माना जाता है कि they are something relative to the relatives to the animals also. तो ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, मतलब दूसरों से अपना फूड लेते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट ऑल्सो, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीडेटर्स ऑल्सो। तो बहुत सारे डिजीजेस भी कॉज करते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम, टाइकोमोनास, ये सब आप अभी पढ़ेंगे एग्जाम्पल में। तो वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स जो हैं। फर्स्ट इज अ अमीबॉइड प्रोटोजोआ, तो अमीबा बना हुआ आप देख रहे हो। तो दीज ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, ये कहीं भी रह सकते हैं। एंड ये अपना फूड जो है वो लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, दिस फॉल्स फूड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। तो ये सीडोपोडिया हो गए। तो इनकी हेल्प से ये अपना फूड लेते हैं, अपना जो प्रे है उसको कैप्चर करते हैं। तो फॉल्स फूड होते हैं अमीबा के अंदर। एंड दे हैव जस्ट सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। बहुत सारे ऐसे अमीबा हैं, सब में नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बेसिकली विच आर मेरीन, दे हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। एंड सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा, दे आर पैरासाइट। आपको पता है एंटमीबा की 2 स्पीशीज़ हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जानते हो एंटमीबा जिंजीवेलिस, आप जानते हो गम्स को डिजीज़ करता है, जिंजीवेलिस हिस्टोलिटिका अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। तो दीज आर द पैरासाइट्स बिकॉज दे लिव इन अवर बॉडी एंड क्रिएट हार्म टू अस, है ना, तो हमें हार्म पहुंचाता है। देन कम टू द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक में बेसिकली, एंड दे हैव फ्लैजिला, क्योंकि उनका नाम ही है फ्लैजिलेटेड। एंड दे आर पैरासिटिक ऑल्सो, और बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज़। हम लोगों में बीमारियाँ या और भी एनिमल्स में बीमारियाँ कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक ट्रिपैनोसोमा is one of that organism. Here you can see various kinds of protozoas. तो this one, first one, this is trypanosoma, ये वाला आप स्ट्रक्चर्स का देख सकते हैं। फ्लैजिला, न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। तो एग्जाम्पल है इसका ट्रिपैनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस मीन्स फिर बंदे को जिसको काट लेते हैं ना, फिर जो भी फ्लाइज के थ्रू ये इंजेक्ट हो जाते हैं, लाइक मॉस्कीटो हमारे बॉडी में छोड़ता है प्लाज्मोडियम, तो वैसे ही ट्रिपैनोसोमा भी एक फ्लाई के बाइट करने से हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो फिर जो जिस पेशेंट के अंदर ये ट्रिपैनोसोमा आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो वो सोता रहता है बंदा, इसलिए उस डिजीज़ का क्या नाम है, स्लीपिंग सिकनेस। Then come to the ciliated protozoans. Ciliated protozoans means protozoa which have cilia, like you have studied about the paramecium. अगर आपको paramecium याद हो तो paramecium की बॉडी पे ये, this is the diagram, you can see it here. तो paramecium की बॉडी इज फुल ऑफ सीलिया। तो दीज आर प्रेजेंट इन वाटर, एक्वेटिक है, दैट मीन्स ये क्योंकि सीलिया हैं तो ऑब्वियस आपको पता है कि सीलिया के थ्रू ये मूव ही करते होंगे ना। तो दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया यू कैन सी ऑन देयर बॉडी, एंड दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट दैट ओपन्स
to the outside of the cell surface. If I remove the color, you can easily see दिस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला कैविटी लाइक स्ट्रक्चर एक आपको दिख रहा है। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो ये बाहर ओपन हो रहा है, ये बाहर ऐसे ओपनिंग होगी इसकी इस तरीके से। तो जो ये दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस एंड देयर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, दैट मीन्स सारे जो सीलिया है ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड फॉर दैट जो बाहर की वाटर करंट में फूड है या कुछ भी है वो इजीली इस गलेट के अंदर इजीली आ जाता है। सेल गलेट इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये एक वो होता है वैक्यूल, तो वो उसको फूड को कर देती है डाइजेस्ट। तो इस तरीके से ऑल द सीलिया दे बीट इन द सेम डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे तब तो कोई चीज़ अंदर नहीं आएगी वाटर से बाहर से, तो दे मूव इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो एक साथ सारे सीलिया एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस तरीके से दे स्टीयर द फूड इनसाइड द गलेट फ्रॉम द वाटर जो बाहर होता है प्रेजेंट ऑब्वियसली। देन लास्ट वन इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इज दैट मीन्स स्पोर फॉर्मिंग प्रोटोजोवंस हैं ये। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं एंड दे प्रोड्यूसेज स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। किसी भी स्टेज में लाइफ साइकिल के कभी ना कभी वो स्पोर बनाते हैं एंड दे आर इन्फेक्शियस, दिस स्पोर्स आर इन्फेक्शियस एंड द मोस्ट डेंजरस वन इज़ द प्लाज्मोडियम दैट इज़ कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट, आप जिसको जानते हो, विच कॉजेज द मलेरिया। क्योंकि मॉस्किटो के बाइट करने से तो मलेरिया नहीं होता है, बट ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो उन मॉस्किटो के सलाइवा में होता है और जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो ऑब्वियसली ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आ जाता है एंड विच कॉजेज द मलेरिया और डेंगू एक्सेट्रा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटोजोअस। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। In next lecture we will discuss the kingdom fungi. Here is a summary which is given between the groups of protist and protozoans. Here it is given zooflagellates, sarcodines, sporozoa and ciliata. So all these differences are given here. You have to take a reading of it and then let me know if you found any problem.